Parliament. Which one of the following will fit in the place of X? X. Council of State Rajya Sabha not more than 250 members, सही है. 12 nominated, not more than 238 representative of state and union territories. ठीक. हाउस ऑफ पीपल नॉट मतलब अभी जो हैं वो 550 हैं. ये जो दो हैं वो ख़त्म हो गए हैं. 530 स्टेट से हैं, 20 जो हैं यूनियन टेरिटरीज से हैं. ठीक. नॉट मोर देन 2 ये मतलब अब ख़त्म हो गए हैं 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद. मिनिस्टर्स नॉट मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट बट मस्ट गेट इलेक्टेड विद इन 6 मंथ, सही है. नॉट मोर देन 20 नॉमिनेटेड मेंबर्स, 12. नॉट मोर देन 20 रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ यूनियन टेरिटरीज, सही है. अटॉर्नी जनरल हु हैज़ राइट टू स्पीक इन पार्लियामेंट, ये भी सही है. लेकिन ये क्वेश्चन क्या था पता नहीं. कंपोजिशन ऑफ लोकसभा, आर्टिकल 81(1), 530 members elected from states by direct election, 20 members elected from union territories, 2 nominated members, लेकिन अब removed after 104th constitutional amendment 2009 जनवरी 2020 के बाद इसको ख़त्म कर दिया गया. मिनिस्टर नॉट मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, आर्टिकल 75(5), ए पर्सन हु इज नॉट ए मेंबर ऑफ आइदर हाउस कैन बी अपॉइंटेड एज ए मिनिस्टर बट मस्ट गेट इलेक्टेड विद इन 6 months, or she ceases to be a minister. This is related to executive eligibility, not composition of house. ये executive eligibility है, composition of house नहीं है. Not more than 20 nominated members. There are 20 nominated members in Lok Sabha, नहीं. Only 12 nominated members exist in Rajya Sabha, Article 80, for expertise in arts, science, literature and social services. Not more than 20 representatives of union territories, सही है, as per article 181B. This completes 550 member strength of Lok Sabha. Attorney General, article 88. Attorney General has right to speak and participate in parliamentary proceedings but can't vote. He is not a member of parliament, hence unrelated to table's text. 104th Constitutional Amendment Act 2019 removed the provision for nominating 2 Anglo-Indians in the Lok Sabha. The maximum strength of Lok Sabha is now 550, 530 plus 20 unless revised by law. Rajya Sabha still has 12 nominated members under Article 80. Article 80 के तहत अभी भी मतलब nominated members हैं. Address. The President of India addresses the Parliament under Article 7 Article 87, joint sitting of both houses. Article 87 के साथ both houses assembled together. Article 108 के तहत joint sitting होती है. 87 के तहत both houses assembled together. The President addresses both houses of Parliament assembled together at the first session of each general election of Lok Sabha. At the first session of each year, the term joint sitting or joint session or joint meeting are not mentioned in Article 87. तो ये Article 87 के तहत both houses assembled together first session में जब होता है चुनाव के बाद, जनरल इलेक्शन के बाद, लोकसभा के जनरल इलेक्शन के बाद जब पहला वो होता है तो मतलब बैठक होती है, असेंबल होते हैं. मतलब इसमें जॉइंट सीटिंग या ये सब नहीं हो सकता, मतलब वो मेंशन नहीं है. आर्टिकल 108 में मेंशन है वो. फंडामेंटल. अब देखिए जॉइंट सीटिंग, ये आर्टिकल 108 बताता है. जॉइंट सीटिंग रिफर्स टू रिजॉल्विंग ए डेडलॉक ऑन एन ऑर्डिनरी बिल प्रिसाइडेड ओवर बाय स्पीकर ऑफ लोकसभा. ठीक. जॉइंट मीटिंग, नो कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म जॉइंट मीटिंग. जॉइंट मीटिंग कोई वो नहीं है. जॉइंट सेशन ऑफन मिसयूज्ड सिनोनिम फॉर जॉइंट सीटिंग, कॉन्स्टिट्यूशनली इनएक्यूरेट अंडर आर्टिकल 87. बोथ हाउसेस असेंबल्ड टुगेदर. आर्टिकल 87 के तहत बोथ हाउसेस असेंबल्ड टुगेदर आफ्टर लोकसभा जनरल इलेक्शंस. ठीक है. द प्रेसिडेंट एड्रेस इज लाइक ए पॉलिसी स्टेटमेंट ऑफ द गवर्नमेंट. It's mandatory for Parliament to listen to this speech, and later a motion of thanks is passed, can be debated and amended. If motion is defeated, it amounts to loss of confidence in the government. Special address to the
With reference to the special address, which statements are correct? President addresses both house at the first session after each general election and at the first session each year. मतलब बिल्कुल सही है. द एड्रेस इन्फॉर्म्स पार्लियामेंट ऑफ द कॉजेज ऑफ समन्स, ये भी सही है. ठीक. अब देखिए, मैचेज द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 87(1), मतलब 2 केसेस. फर्स्ट सेशन आफ्टर लोकसभा जनरल इलेक्शन और दूसरा फर्स्ट सेशन ऑफ ईच ईयर. The President's address includes a summary of why the session is being summoned and outlines the government's legislative agenda. The President's address is a constitutional obligation and a convention in a parliamentary democracy. It is written by the government and not drafted by the President. ये written होता है गवर्नमेंट द्वारा. The motion of thanks that follows is an important tool for parliamentary debate. ये मतलब ये जो मोशन ऑफ थैंक्स देते हैं, इस पे पार्लियामेंट्री डिबेट होता है आगे चल के. कंपोजिशन ऑफ लोकसभा आर्टिकल 81, इसमें क्या है, लगभग 530 और 20 वो रहेंगे, क्या कहा जाता है, 20 यूटीज़ के एमपीज़ रहेंगे. अब 552 नहीं है, 550 है. कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा आर्टिकल 80, लगभग 250 है, 238 इलेक्टेड और 12 नॉमिनेटेड. प्रेसिडेंट्स एड्रेस आर्टिकल 87, एट फर्स्ट सेशन पोस्ट इलेक्शन एनुअली बोथ हाउस असेंबल्ड टुगेदर. आर्टिकल 87 के तहत ये जो पहला सेशन होता है इलेक्शन के बाद वाला, और जो एनुअली भी मतलब हर साल वाला भी जो शुरुआत का पहला वो होता है बैठक होती है, उसमें भी प्रेसिडेंट मोशन ऑफ थैंक्स देते हैं. जॉइंट सीटिंग आर्टिकल 108 टू रिजॉल्व लेजिस्लेटिव डेडलॉक, नॉट सेम एज प्रेसिडेंट एड्रेस. प्रेसिडेंट एड्रेस दूसरा होता है, ये जॉइंट सीटिंग अलग होती है. ठीक. वो आर्टिकल 87 के तहत आता है, ये आर्टिकल 108 के तहत आता है. ठीक. और इसमें ऑर्डिनरी बिल और फाइनेंशियल बिल पे वो होता है, मामला चलता है. जॉइंट सीटिंग आर्टिकल 108 टू रिजॉल्व, हाँ, लेजिस्लेचर. अटॉर्नी जनरल आर्टिकल 88, राइट टू स्पीक इन पार्लियामेंट बट नॉट टू वोट. अटॉर्नी जनरल पार्लियामेंट में बोलने का अधिकार है, वोट करने का नहीं. नॉमिनेटेड मेंबर आर्टिकल 80 और 331. 12 इन राज्यसभा, 2 एंग्लो इंडियंस. अभी 331 को हटा दिया गया है. 332, हाँ, 331 और 333 स्टेट लेजिस्लेचर के लिए था, वो भी हटा दिया गया है. विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्टेटेड इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? द प्रेसिडेंट शैल नॉट बी ए मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, बिल्कुल सही है. द पार्लियामेंट शैल कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट एंड द 2 हाउसेस, ये भी सही है. आर्टिकल 59(1), द प्रेसिडेंट शैल नॉट बी ए मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट और of a house of the legislature of any state, बिल्कुल सही है. This ensures that the separation of executive and legislature. आर्टिकल 79 क्या कहता है? There shall be a parliament for the union and which shall consist of the president and 2 houses to be known respectively as the council of state राज्यसभा and the house of the people लोकसभा. ठीक है, तो दोनों सही. Though the president is not a member, he is an integral part of parliament फॉर लेजिस्लेशन. मतलब प्रेसिडेंट मेंबर नहीं होता, लेकिन वो इंटीग्रल पार्ट होता है पार्लियामेंट का. दिस रिफ्लेक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल डुअलिज्म. द प्रेसिडेंट इज नॉट ए लेजिस्लेचर बट हैज़ ए लेजिस्लेटिव फंक्शंस. क्या कॉन्स्टिट्यूशनल डुअलिज्म क्या कहता है कि प्रेसिडेंट जो है लेजिस्लेचर नहीं है, मेंबर नहीं, मतलब किसी हाउस के मेंबर नहीं है, लेकिन उनका लेजिस्लेटिव फंक्शंस है. The president is not, नहीं भाई, is part of parliament. Article 79. As per Article 79, president is part of parliament, but the president does not sit in the day-to-day proceeding of either house, cannot vote in parliamentary matters. वो सिर्फ क्या करेंगे, जॉइंट सीटिंग में या तो आएंगे या मतलब वो करेंगे और मतलब बुलाएंगे. जॉइंट सीटिंग बुलाते हैं प्रेसिडेंट, और सम्मन करेंगे या प्रोरॉग करेंगे सेशंस को. हाँ, सम्मनिंग एंड प्रोरॉगिंग मतलब ये 2 ही चीज़ करेंगे.
और मतलब टालने का काम किसका होता है? स्पीकर का होता है कुछ देर के लिए। डिसॉल्विंग ऑफ लोकसभा, असेंटिंग टू बिल्स, एड्रेसिंग पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 87, मतलब बिल्स को मंजूरी प्रदान करेंगे, सम्मन करेंगे, प्रोरोग करेंगे, ठीक है। पार्लियामेंट इज फॉर्म्ड बाय लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट आर्टिकल 79 के अकॉर्डिंग। द स्ट्रक्चर मेंटेन बाईकैमरलिज्म with an executive head president as a part of legislative process. The president's role in the legislative process is similar to the British Crown in Parliament. The formation of Parliament is completed by House of People, Council of State and President. Repeats this Article 79. President, Rajya Sabha, Lok Sabha. Indian Parliament consists of President, Rajya Sabha and Lok Sabha. ठीक है. Parliament of India consists of President, Rajya Sabha, Lok Sabha. Vice President, no, Vice President is ex officio chairman of Rajya Sabha, Article 64, but not a part of Parliament constitutionally. ये देखिएगा, ध्यान दीजिएगा कि वाइस प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूशनली पार्ट नहीं है, ये एक्स ऑफिशियो चेयरमैन के रूप में पार्ट हैं पार्लियामेंट के, वाइस प्रेसिडेंट के रूप में नहीं। देखिए, वाइस प्रेसिडेंट दो ही प्रिसाइड ओवर राज्यसभा, ही इज नॉट ए पार्ट ऑफ पार्लियामेंट्स कंपोजिशन, ओनली परफॉर्म प्रोसीजरल फंक्शंस, नॉट ए लेजिस्लेटिव वन लाइक असेंट, समनिंग एक्सेट्रा। ये प्रोसीजरल फंक्शन बस वो करते हैं, लेजिस्लेटिव फंक्शन नहीं करते हैं। पार्लियामेंट्री स्ट्रक्चर आर्टिकल 79, प्रेसिडेंट प्लस राज्यसभा प्लस लोकसभा। प्रेसिडेंट नॉट ए मेंबर ऑफ हाउस, आर्टिकल 59(1) प्रिवेंट्स ओवरलैप ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर, ओवरलैप ना हो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर में। प्रेसिडेंट रूल आर्टिकल 85, 111, 87, सम्मन्स, एसेंट्स, एड्रेस, प्रोरॉग भी करते हैं। वाइस प्रेसिडेंट आर्टिकल 64, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, नॉट पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। वोटिंग राइट, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट डू नॉट वोट इन लेजिस्लेटिव डिसीजंस। इंडियन पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ president and both houses of parliament. According to Article 79 of Indian Constitution, there shall be a parliament for union which shall consist of president and two houses known as Council of State, Rajya Sabha, and House of the People, Lok Sabha. Prime Minister is executive, not part of parliament. Speaker is functionary, not a separate part of parliament. This structure is borrowed from British parliamentary model where the crown is a formal form of legislature. Even though the president does not participate in debates, no bill becomes law without president's assent, आर्टिकल 111। ठीक, तो यहीं तक हम लोग ख़त्म करते हैं, बाकी अगले मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय।